This one? Yes, Bachchu. Welcome to your first lecture of English. Who will tell me how much marks does English hold for your examination? CPC, civil exams 200, criminal exams 200. English? है कोई weightage exam में? पढ़ क्यों नहीं है? Why are we wasting our time? Is there any weightage? प्रॉपर मिलता है 3 hours. 3 hours का प्रॉपर होगा. How much exam does English hold? English तो normal language है, क्यों ही पढ़नी है, time wastage है, laws important है. I know law का बहुत ज़्यादा importance है, लेकिन जो law पढ़ रहा है वो सब पढ़ेंगे अच्छे से. Weightage का फर्क कहाँ पड़ेगा? Language से. Not only English, Punjabi, Hindi as well. Each holds 200 marks. जो सारे subjects law के combined 400 है, and only one subject holds rest. Oh, sorry. Thank you. So basically, I was saying that your law subject holds 200 marks each, civil and criminal, but English exam also holds 200 marks. Can anybody tell me the syllabi? Anybody? You might have gone through the syllabus of judiciary examinations. This isn't your first class in the judiciary exam. No one? Quite shocked. First of all, you have essay of 100 marks. Essay writing. Okay? The most scoring part of your language is this one. Okay? Next are your RC. Reading comprehensions basically. In Punjab, you have them of 20 marks and in Haryana of 25 marks. Okay? RCs, reading comprehension, what are they? ऐसे तो हम end में discuss करेंगे after our grammar is done. So, what are reading comprehension, students? Easy question, not even a difficult one. क्या होती है reading comprehension? You're looking at me like I asked some question out of this world. Alien question पूछ लिया कोई? Yes, what are it? हाँ, there is a passage given to you and there will be some questions below it and you have to answer them. अब जुडिशरी एग्जाम है, इजी तो वो देंगे नहीं, तो आपका बहुत ज्यादा कैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन का डिफिकल्ट लेवल भी नहीं आता, लेकिन बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता. सो इट इज मॉडरेट एंड इंटरमीडिएट लेवल, बट आपको पढ़ना डिफिकल्ट के लिए ही पड़ेगा. यू कैन नॉट गो अहेड एंड से कि हम मॉडरेट का पढ़ के हमारा हो जाएगा. यू नेवर नो क्या दे दें वो, लेकिन आपको इतना एक्सट्रीम नहीं आएगा. ठीक है? Moderate level of RCs will be given to you, like inference based question. Tell me the tone of the passage, whether it is analytical tone, reflective tone, physiological tone, didactic tone. ये सारी tones के बारे में आपको पूछते हैं RCs में. Inference based questions ज़्यादा आते हैं. But the one thing is that you do not get objective type questions over here. You get the subjective questions. Okay? Make sure आपको ये objective में नहीं आता, जैसे usually हमें RCs में MCQs आते हैं ना. Usually it comes around 4 to 5 question each RC. Question RC. हाँ, मतलब एक पैसेज में 4-5 क्वेश्चन होंगे. 20 मार्क्स होल्ड कर रही है बेटा, 25 मार्क्स होल्ड कर रही है इन हरियाणा. तो उसके अकॉर्डिंग आपके हो गए अप्रोक्सीमेटली 4 RCs हो जाते हैं. इफ इट इज अ 1 मार्क, अगर 4-5 क्वेश्चन हो गए ना, your one question holds around 1 to 2 marks each questions. हाँ, depending on the question also, वो लिखते हैं ना साइड में. It is an easy one or a difficult one.
टोन वाला क्वेश्चन है देन इट माइट होल्ड 1 मार्क, राइट? अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब तक आपको ओपिनियन नहीं बोला कि आरसीज में अपना ओपिनियन नहीं देना, सो स्टार्ट रीडिंग आरसीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जो राइटर बोल रहा है वो सच है, चाहे आप उसके अगेंस्ट हो, उसके व्यूज के, चाहे आपका खुद का कोई ओपिनियन हो, यू कैन नॉट गो विद दैट. Okay, you have to make sure that you only uphold the ideas and the viewpoint of the writer only who has written the passage. अगर writer बोल रहा है sky is pink and it sheds cotton candy instead of rain, cloud shed cotton candy instead of rain, तो आपको वो चीज believe करके वही लिखनी है. आप ये नहीं बोल सकते no the sky is blue and clouds are almost dark in color when it rains and rain is in form of water. आप ये नहीं लिख सकते even though you are right over here. उस पर ही जाना है. जैसे कहते हैं ना, कई बार स्कूल में हम टीचर्स कई बार बोलते होते थे कि जो मैंने बोल दिया वही सही है. जैसे मैथ्स वाले टीचर्स होते थे, मेरा मेथड सही है, ट्यूशन वाले मैम का मेथड नहीं सही. उन्हीं के व्यू पॉइंट पर जाना है. जब तक वो आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछेंगे कि टेल अस समथिंग अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस, तब तक आप अपना ओपिनियन नहीं दोगे. तब भी जब तक ये नहीं लिखा योर ओपिनियन और योर टेक ऑन द पैसेज, यू विल नॉट चेंज द ओपिनियन दैट इज मेंशन इन द पैसेज इटसेल्फ. करेंगे आरसीएस डिटेल में, बट थोड़ा सा जब आप करना शुरू करोगे ये चीज ध्यान में रखना, जो लिखा है वही सच है, उसके आसपास कुछ है ही नहीं सच. जब आरसी पढ़ोगे पूरी दुनियादारी भूल के पढ़ना है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिस. प्रेसी राइटिंग क्या होती है बच्चों? व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? थोड़ा सा तो बता दो. गलत आंसर दे दो, यहाँ कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रही है आपकी? यस. क्या हो सकता है प्रेसी राइटिंग? नो वन. एक तरह से बेटा आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है, उसके ऊपर राइटिंग होती है, हेडिंग देनी होती है, पैराग्राफ लिखना होता है. प्रेसी में भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं. ये सिमिलरली 20 मार्क्स एंड 25 मार्क्स इन हरियाणा. देखो छोटे मोटे नहीं है, अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे मार्क्स लेना बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इंग्लिश लैंग्वेज को हवा बनाया हुआ है. क्यों? कुछ बच्चों ने कभी उनको एनवायरमेंट ही नहीं मिला, दे डिडंट गेट द एनवायरमेंट टू स्पीक द लैंग्वेज. लोग क्या कहते थे, अंग्रेज बन रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है जो हमारे साथ इंग्लिश बोल रहा है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज की. या फिर आप सीबीएस या इंग्लिश मीडियम की जगह पंजाब बोर्ड या फिर किसी और बोर्ड से पढ़े हुए होते हो, देयर ऑल्सो यू डू नॉट गेट द एनवायरमेंट टू टॉक इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज. सो दैट इज वेयर वी फेस द प्रॉब्लम. बट इंग्लिश कुछ है नहीं. पंजाबी मुश्किल लगती है, हिंदी मुश्किल लगती है. चलो आपने पंजाबी आई गेस नहीं पढ़ी होगी तभी डिफिकल्ट लगती है. हिंदी मुश्किल लगती है? नहीं लगती. सिमिलरली विद इंग्लिश, थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन समझ आ जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश इज नथिंग बट अ पीस ऑफ केक. यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इनटू इट. ओके. नेक्स्ट बेटा, आपकी वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वोकैबुलरी, मार्क इट अ स्टार. इसके बिना तो आपका इंग्लिश एग्जाम हो ही नहीं सकता अच्छे से. सिमिलरली 20-25 मार्क्स. वोकैब में आपको क्या क्या आएगा? दे विल गिव यू वर्ड, दे विल आस्क यू द मीनिंग ऑफ इट, कि वर्ड का मीनिंग बताओ, एंड दे कैन आस्क यू टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑन इट. अब सेंटेंस आपने ये नहीं बताना. सपोज मैंने उस दिन क्लास में एक वर्ड करवाया था फ्रैंटिक, इफ यू रिमेंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रैंटिक? हाँ, सोचो मैंने किसका ऑपोजिट बोला था, गेस करो. फ्रैंटिक. थिंक ऑफ द मीनिंग, ट्राई करो. स्केरी नहीं, थोड़ा सा नजदीक हो. किसका ऑपोजिट था? फ्रैंटिक किसके जैसा साउंड कर रहा है? और इसका ऑपोजिट क्या हो गया? फ्रैंटिक. फ्रैंटिक क्या हो गया फिर? फैंटास्टिक. एक तरह से फ्रैंटिक मैंने इस तरीके से याद करवाया था, तो क्या मीनिंग हो गया फ्रैंटिक का? यस बच्चों, ट्राई तो करो. अब आपको पता चल गया फैंटास्टिक का एक तरह से ऑपोजिट है, तो क्या हो गया? फैंटास्टिक मतलब चिल, कूल, एवरीथिंग इज गुड. फ्रैंटिक क्या हो गया? एक्सट्रीमली पैनिक और एक्सट्रीमली वरिड, पैनिक स्ट्रिकन. ठीक है. तो अगर मैंने बोला फ्रैंटिक पर सेंटेंस बनाओ, ये नहीं बोलना शी इज फ्रैंटिक. ठीक है. ऐसे हमने कभी नहीं सेंटेंसेस बनाने. सेंटेंसेस थोड़े से वो होने चाहिए दैट टेल्स अस द मीनिंग ऑफ द वोकैब वर्ड इटसेल्फ इन द सेंटेंस, है ना. अगर मैं आऊं शी इज कूल,
एक तो प्रोनाउंस नहीं यूज करने, कभी भी करवाती हूँ अभी वो कैब में भी क्या करना है। फिर आते हैं बेटा आपके बेटा 2025 सेम 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 चल रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट वी हैव विद अस इज ईडियम्स। अब पंजाब का पेपर आने वाला है ना, इस साल आएगा, नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गई है ना, कि आएगा इस साल में एक बार। अब कब आएगा वो हमें नहीं पता, बट देर आर चांसेस इस साल आए। तो उसमें 20 मार्क्स के ईडियम्स आते हैं, इसमें नहीं आता। हरियाणा में यू डू नॉट गेट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बट इफ यू नो गुड ईडियम्स एंड फ्रेजेस यू दे विल हेल्प यू इन व्हाट essay writing, they will help you in what pressy writing। ये नहीं है कि एक चीज कर ली तो इंटर रिलेटेड ही नहीं है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, लास्ट वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, जिस पे हम करेंगे टाइम अपना लगाएंगे, करेक्शन सेंटेंसेस। करेक्शन सेंटेंसेस बेटा 20 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। अगेन करेक्शन सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको करवाए थे उस दिन, थोड़ा सा हिंट दिया था, दीज आर रिलेटेड टू योर ग्रामर। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, they will tell you to correct the sentence grammatically, like buses after buses were leaving the bus shop. Is this sentence grammatically correct? Buses after buses were leaving the bus shop. Buses after buses were leaving the bus shop. Bus shop. Bus shop. Is this sentence correct or not बच्चों? ये आएगा रूल आपको, करेक्ट। बस शॉप आप कहते नहीं, आई एम टेकिंग माई कार टू द शॉप, रिपेयर के लिए। दिख रहा है बोर्ड? What is after here as a part of speech? As a part of speech, what is after? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection, क्या है after? अरे मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिक्टेट कर दिए, अब तो बताओ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, आफ्टर क्या है यहाँ पे? गेस कर लो, गलत हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इट्स अ प्रेपोजिशन। और नाउन क्या है इन सेंटेंस में? Buses, very good. These are nouns. ये सब नाउन है। अब जब बेटा रूल क्या कहता है हमें, करेक्शन सेंटेंसेस आपको ऐसे आएंगे कि ऐसे आपको पूरा बना के दे देंगे। नाउ व्हाट द रूल सेज, व्हेन यू हैव द preposition, a noun has a preposition and the same noun after that preposition also। जब एक preposition के आगे और पीछे सेम नाउन होता है तब वो नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। बस आफ्टर बस ये सेम रहेगा, वर विल रिमेन वर ओनली, वर को सिंगुलर नहीं करेंगे हम। बस आफ्टर बस वर लिविंग द बस शॉप। अंडरस्टूड? दीज आर द करेक्शन सेंटेंसेस, आपको ये लिखने हैं वहां पे एग्जाम में। ये तब तक नहीं आएंगे जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे। पूरा एक सेंटेंस, बस आफ्टर बस वर लिविंग द बस शॉप। स्टॉप मत लिखाना वहां पे, अगर आपको नहीं पता ना तो गलतियां ये मत करना, माइन्यूट माइन्यूट सी। गॉट इट? एक बार सिलेबस पता चला? कोई डाउट हो? नाउ राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस फॉर माय क्लास। आपने क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या करना है। यू विल बी मेंटेनिंग 2 नोटबुक्स, 2 ब्लैंक रजिस्टर्स चाहिए मुझे मेरी क्लास में, ठीक है, प्लस 2 कलर पेन, दैट इज ऑफ योर चॉइस, कोई भी कलर के। मुझे 2 कलर पेन चाहिए। जैसे हम करेक्शन करेंगे, पूरा सेंटेंस लिखा है, अब मैं नहीं चाहती कि क्लास में आप लोग इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करो कि एक सेंटेंस तो पूरा दोबारा लिखो। जस्ट सर्कल इट एंड विद अ डिफरेंट कलर पेन राइट डाउन द करेक्शन। ग्रामर के लिए बिल्कुल एक अलग नोटबुक चाहिए मुझे,
वोकैबुलरी के लिए जो नोटबुक है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हाफ फॉर वोकैबुलरी, हाफ फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस. मिक्स मत करना, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए इनफ है, बाकी बेटा फिर क्या हो गया, एक और रजिस्टर लग जाएगा. अगर वैसे तो इनफ होना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना इनफ है. इतना चाहिए मुझे, ये आपके वोकैबुलरी के लिए इनफ है बेटा. वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए इनफ है. इतना मुझे आपका ग्रामर रजिस्टर चाहिए, लाइक ऑफ दिस साइज. क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती, हाँ मैं नहीं चाहती दैट यू हैव 2-3 नोटबुक्स और फिर बाद में वो इधर उधर हो जाए, है ना. वन रजिस्टर ओनली फॉर ग्रामर, वन फॉर वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड वन फॉर होमवर्क. होमवर्क करके आप मुझे अपने रजिस्टर सबमिट कर दिया करो. गॉट इट. चलो, 2 कलर पेन कंपल्सरी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली. कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 2 कलर्ड पेन्स एज वेल. अगर किसी को नहीं पता, इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में भेज देना कि कल से रजिस्टर्स ले आएंगे और 2 कलर्ड पेन. क्योंकि मैं ग्रामर तो करवाऊंगी, डेली विल बी डूइंग 5 to 10 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी, जिसके ऊपर आप डेली जो भी हम करेंगे, आप उसके ऊपर सेंटेंसेस मुझे 3 सेंटेंसेस ईच वोकैबुलरी वर्ड आप मुझे बना के सबमिट किया करोगे. इज दैट ओके? ओके विद एवरीबडी? इतना होमवर्क ज्यादा तो नहीं है ना? श्योर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. बेटा अब मैं अगर आपको कहूं, अब इन सब में जो भी हमने सिलेबस देखा, इसमें ग्रामर कहीं आ रही है? इज ग्रामर फॉलिंग एनीवेयर? बी ऑनेस्ट, देखकर लग रहा है कहीं ग्रामर है? नहीं है ना. अगर मैं आपको ग्रामर पढ़ाने लग जाऊंगी, आपने मुझे ये नहीं पूछना कि मैम ये तो सिलेबस में नहीं आएगी, हम पढ़ क्यों रहे हैं. इजंट इट ट्रू? व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन ग्रामर? हमारा मेजॉरिटी पोर्शन किस में जाएगा? ग्रामर में जाएगा. लेकिन क्यों कर रहे हैं आप? किसी में ग्रामर नहीं है. लेट्स सपोज यू स्टार्ट राइटिंग डाउन एन एसे. ठीक है, पहली लाइन लिखी, यू थॉट गलत हो गया, कट कर दिया. दूसरी लाइन लिखी, कट कर दी. तीसरी लाइन लिख दी, चलो शुरू कर दिया, पूरा ऐसे का फ्लो बन गया. पहली लाइन में ही 3 ग्रामेटिकल एरर्स हैं, दूसरी में 4 हैं, आगे सो ऑन. किसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? एग्जामिनर के आगे इंप्रेशन कैसा बनेगा? हु विल गेट गुड मार्क्स? विद गुड ग्रामेटिकल ऐसे, और ऐसे ही जो ऐसे लिखा है गुड ग्रामेटिकल. प्रेसी में भी सेम. आरसी में ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है? आरसी है, जो राइटर ने लिख दिया हमने वही लिखना है. आरसी में क्यों इंपॉर्टेंट है? आरसी में बेटा एक छोटे छोटे कंजंक्शन प्रेपोजिशन की मिस्टेक दे देंगे. छोटी छोटी, सर पानी दे देंगे प्लीज. छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं. कहीं पे नीड नॉट लिखा हुआ है और कहीं पे मे लिखा हुआ है मोडाल में, और ये नहीं पता मे वाले में आंसर सही होना था या नीड नॉट में. इतने इतने से आरसी में वो आपको पॉइंट्स दे देंगे क्वेश्चन में. आपको क्वेश्चन दे दिया दैट राइटर सेड आई डू नॉट. ओए आते नहीं ऐसे. अगर विस्पर करना है, विस्पर करो, जोर से विस्परिंग नहीं होती है, मेरे तक आवाज ना आए, ठीक है, धीरे होती है वो. आई डू नॉट नॉट लाइक हिम, इसका मीनिंग क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मैंने ये लिख दिया, आई डू नॉट नॉट लाइक हिम. पॉजिटिव है, मैं उसको पसंद करती हूँ या मैं उसको पसंद नहीं करती, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? नहीं करती हूँ. ठीक है, बोलो. हु सेज दैट इट इज अ नेगेटिव मीनिंग कि मैं उसको पसंद नहीं करती? रेज योर हैंड्स. करो यार, ये क्या है लड़कियों की तरह ऐसे हाय? कोई मूवी स्टार को मिलने जा रहे हो ऐसे हाय कर रहे हो? से आई डू नॉट नॉट लाइक हिम मीन्स दैट आई डोंट लाइक हिम. रेज योर हैंड्स फॉर दिस वन. एंड व्हाट अबाउट यू टू? दैट आई लाइक हिम, इसका मीनिंग ये है. मैथ्स पढ़िए सभी ने एक बार के लिए तो. ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है. और ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है. नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है. आप एक, अगर आप बोलते आई डोंट लाइक हिम, मैं मान लेती. आई नॉट लाइक हिम, मैं मान लेती. आई डू नॉट नॉट लाइक हिम, ये तो कैंसल हो गए. क्या बन गया? आई लाइक हिम. अब बोलो आरसीज में ग्रामर की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच सर.
अब बोलो आरसीएस में ग्रामर की नीड नहीं है? अब आ जाते हैं प्रेसी पे। प्रेसी में क्यों जरूरत है? सेम बेटा, इसमें भी लिखोगे आप, है ना? अब आपको कंसाइज कैसे करना है, क्रिस्प चीजें कैसे लिखनी है, इसमें आप फॉलो किया करो वन वर्ड वाला। अब जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि दैट पर्सन ओनली टॉक टू द टीचर्स टू इम्प्रेस देम। इतना बड़ा सेंटेंस है, आपके पास एक वर्ड लिमिट होती है उसमें लिखने के लिए। रेसी मतलब समरी लिखना एक पैसेज की, है ना? एक पैरा लिख कर आओगे, समरी लिख कर आओगे, तो वो 1/3 होनी चाहिए। 5 वर्ड ऊपर नीचे चलता है, 6-7 वर्ड भी ऊपर नीचे हो गए, 10 वर्ड भी ऊपर नीचे हो गए, वहीं पे 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्या फायदा वर्ड लिमिट एक्सीड करने के लिए? सो वी कॉल दैट काइंड ऑफ पर्सन व्हाट? अ साइकोफेंट। ही इज जस्ट अ साइकोफेंट। हम ये नहीं लिख सकते? टीचर्स पेट, या फिर जो कंपनीज में होते हैं, जो पर्सन इन अथॉरिटी को थोड़ा सा प्रेज करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उनको हम साइकोफेंट्स कहते हैं। इतना बड़ा लिखने की जगह में क्या लिखना चाहिए? साइकोफेंट। ठीक है? तो ऐसी चीजें अब डेली अपनी रूटीन क्या बना लो। कोई भी अगर आप चीज देखते हो, मैं तो वोकैबुलरी करवाऊंगी जो आपके जुडिशरी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अब, लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है ना उसी में से वर्ड्स आएंगे। मैं तो अपनी तरह से एज पर माय एक्सपीरियंस में आपको मैक्सिमम करवाऊंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है खुद की भी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी आपको। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी टीचर ने कोई वर्ड बोल दिया, साथ के साथ लिखो, उसका मीनिंग देखो। डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उस दिन भी बताया था ना। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम, सेंटेंस फॉर्मेशन भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। गूगल और चैट जीपीटी फॉलो मत करो। गॉट इट? अगर एक वर्ड के 2-3 मीनिंग भी हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस द स्टेप्स नाउ कि आपने अपनी तैयारी इंग्लिश की करनी कैसे है एक्चुअली। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, बिल्डिंग द बेस। बिल्डिंग द बेस। अब बेस कैसे बनाओगे आप? हाउ डू यू थिंक द बेस कैन बी डन? बिल्डिंग द बेस, हमें पहले बेस बनाना पड़ेगा ना लैंग्वेज पढ़ने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज शुरू की और एक दिन में लैंग्वेज आ गई। हाउ टू मेक द बेस? एक तो मैंने स्टेप बताई दी है। सबसे पहले हर वर्ड का मीनिंग देखोगे, उसका यूजेज देखोगे और उसके ऊपर डेली सेंटेंसेस बनाओगे। नंबर 1 इन बिल्डिंग द बेस। नंबर 2, आप ग्रामेटिकल रूल्स को डेली विदाउट अ ब्रेक रिवाइज करोगे बेटा। अब मैं आपको सेंटेंसेस कुछ सिखा जाऊंगी, अब वही सेंटेंसेस थोड़ी आएंगे एग्जाम में। रूल्स नहीं मालूम होगे तो कैसे करोगे सेंटेंसेस को? नहीं कर सकते हो। रूल्स याद करने जरूरी है, मेरे दिए हुए सेंटेंसेस नहीं। ठीक है? नेक्स्ट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने आपको बुक्स बता देती हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए बुक्स लेनी है। अगर आपने देखो ग्रामर, अगर आपको लग रहा है नाउ नो नीड टू बाय ऑल द बुक्स टुगेदर, कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है, इतना तो आप पढ़ोगे भी नहीं, मैं लिख के दे देती हूँ। आई माई सेल्फ वॉज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, तो मुझे पता है इतनी बुक्स एक साथ मैंने भी खरीद ली थी। एक दिन में एक बुक भी नहीं उठा रही थी मैं। क्यों? आई यूज टू गेट पैनिक, देयर आर सो मेनी बुक्स, हाउ टू कंप्लीट देम, हाउ टू कंप्लीट ना। इस चीज में आई यूज टू प्रोकास्टिनेट एंड आई यूज टू लेट इट बी। मैं ऐसे ही छोड़ देती थी फिर। ठीक है? इफ यू वांट टू गो फॉर ग्रामर, गो विद रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन। अगर आपको लग रहा है आपकी ग्रामर वीक है, तो ये वाली बुक पर जाओ। ये आईसीएसई बोर्ड्स और इन सब बोर्ड्स में ये बुक वैसे ही फॉलो होती है। रेन एंड मार्टिन फॉर ग्रामर। जब हम ऐसे करेंगे तो ऐसे के लिए आप जा सकते हो इंग्लिश इज इजी। ऐसे के लिए कौन सी बुक है? इंग्लिश इज इजी। नीड नहीं है बुक्स की आपको। बेटा मेरा बताया हुआ जरूरी थोड़ी है सब कुछ वही आए, खुद से भी तो पढ़ोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे? I can give you 1 or 2 practice tests. How will I give you so many bundle of it? Visible? Ren and Martin second book is English is easy. Third book, अगर देखो आपने जनरल इंग्लिश के बारे में पढ़ना है सब कुछ, then go for General English by S.K. Bakshi. General English S.K. Bakshi.
ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है आपके लैंग्वेज के बारे में, जब आपने पढ़ना है। एस के बख्शी बाय जनरल इंग्लिश बाय एस के बख्शी। सारी एक साथ मत खरीदना, अपने उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपने करना क्या है। ठीक है। लास्ट बेटा, अब ये सिंगल्स लैंग्वेज बुक आती है इंग्लिश की, सिंगल्स की, जैसे जुडिशरी सर्विसेज की लैंग्वेज बुक आती है। इसमें आपको रूल्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बिखरे हुए मिलेंगे, तो मैं प्रेफर करूंगी आप एंड में लो, जब हमारे इंग्लिश के करेक्शन रूल्स खत्म हो जाएंगे, देन गो फॉर दिस वन। बट राइट इट डाउन कि जब आपको लगेगा, सिंगल्स लैंग्वेज जुडिशियल सर्विस बुक। बट आई प्रेफर ये अभी मत लेना, जब थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स होने शुरू हो जाएंगे खत्म, तब लेना शुरू करना, बिकॉज इसमें रूल्स ना बहुत ज्यादा, जैसे नाउन्स हो गए, तब सिंगल्स की ले लो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें जैसे मैं आपको तो एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज करवाऊंगी रूल्स, अब उसमें पूरे नाउन्स के ऐसे ही दे दिए होंगे मिक्स करके, तो कैसे करोगे जब मालूम ही नहीं होगा। ठीक है, डू दैट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। एनी डाउट टिल हियर? एनी वन? यस बच्चों, किसी को भी कोई भी डाउट? ऑल क्लियर? सो मेनी स्मार्ट स्टूडेंट्स इन माय क्लास, है ना? स्लीपी एवरीबॉडी? यार इतना बोरिंग लेक्चर भी नहीं है मेरा ना। स्टेप टू, बेटा स्टेप टू में हमें जाना है कि जो भी आपकी वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग, अब जब देखो सेंटेंस मेकिंग आप करोगे, इडियम्स कर लिए, उनको भी सेंटेंस में यूज करो। अब सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है, अब इसमें आपने सबसे पहले तो यूज नाउन्स इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस। और नाउन्स भी कैसे? राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग नहीं, क्योंकि जुडिशरी सर्विसेज में एक अनस्पोकन रूल्स है दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन द एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम है, ट्राई टू गो फॉर ब्रिटिश और अमेरिकन नेम्स, इंग्लिश नेम्स, स्टेला, जॉन, मार्टिन, ऐसे नाम्स को याद कर लो 5-6। ठीक है, और ये वाले नाम यूज करो इंग्लिश नेम्स। हिंदी नेम, इंडियन नेम अवॉइड करो। मैं तो कह रही हूँ अवॉइड नहीं, बैन ही लगा दो इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी नहीं लिखना आपने। गॉट इट? ठीक है, ये राम श्याम सीता गीता कोई भी नाम ये मुझे दिखने नहीं चाहिए आपके। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर से जितना कम होगा, जितने कम ग्रामेटिकल एरर्स होंगे आपकी सेंटेंस मेकिंग में, उतना आपके लिए अच्छा है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रामर चेक होगी ही होगी। नेक्स्ट बच्चा, लॉन्ग और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इतने लंबे चौड़े सेंटेंस बना दिए। अगर आपको लग रहा है इतना सा सेंटेंस बना के आपका एक मीनिंग क्लियर हो रहा है, व्हाई नॉट? जरूरी है इतने लंबे सेंटेंस में जाना है? नहीं ना। जितना लंबा बनाओगे उतना कोरिलेट करना मुश्किल होगा, उतना ही क्या प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। ग्रामर मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, टेंस में भी प्रॉब्लम आएगी। शॉर्ट एंड क्रिस्प रख ले, लेकिन इन अ वे कि वो मीनिंग कन्वे करे हमें वर्ड का। गॉट इट एवरीबडी? नेक्स्ट, एक कंप्लीट, मीनिंगफुल और लॉजिकल सेंटेंस होना चाहिए। अधूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा हमें लगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नीडेड है, गिव अ बैकग्राउंड। अगर नीडेड है कि फ्यूचर में क्या होगा, थोड़ा सा अगर वो नीडेड है, गिव दैट कंसेप्ट। ठीक है, कंप्लीट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऐसे नहीं शी वॉज फ्लाइंग, क्या मीनिंगफुल हुआ इसमें? नथिंग, राइट? नेक्स्ट, लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए शी वेंट इनविजिबल एंड एंटर द वॉल, है ना? थोड़ा सा लॉजिकल सेंटेंस बना के आना। स्कूल के बच्चे नहीं हो कि हम सिर्फ आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन चेक करेंगे। दे आर गोइंग टू चेक योर ब्रेन ओवर हियर, दैट हाउ मच लैंग्वेज डू यू नो एंड हाउ मच मेच्योर यू आर while making the sentences. अब आप कहोगे मैम जज में हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है, प्रेसी क्यों लिख रहे हैं, सेंटेंसेस क्यों बना रहे हैं, क्यों करना चाहिए हमें ये? बेटा आपको इतना बड़ा केस आया हुआ, आपको लगता नहीं कि आपने उसको समरी उसकी बना के डिलीवर करनी होगी व्हेन यू बिकम द जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स? होता है ना? वोकैबुलरी नहीं अच्छी होती। हम आप कोर्स जाते ही हो गए अभी, देयर माइट बी सम जुडिशियल ऑफिसर्स, आप कहते होगे कि यार इनकी कोर्ट में हिंदी पंजाबी में ज्यादा बात करनी पड़ेगी। होता है ना? तो डू यू वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ जज, और डू यू वांट टू बी अ जज जिनकी कोर्ट में जाते हो आपको होता है कि यार सारा पढ़ के जाना है, उन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ा होता है केस, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, उनकी कोर्ट में प्रिपेयर्ड जाना है? या उनकी कोर्ट में आर्ग्यू करने में मजा आता है, या पहले टाइप के कोर्ट में आर्ग्यू करने में मजा आता है? किसमें ज्यादा मजा आता है? हाई कोर्ट गए हो ना?
ये सिर्फ अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक्सपीरियंस लिया है? गए हो? नहीं गए? गए हो? गए हो? नहीं गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो, बट एक बार हाई कोर्ट जाना, वहां पर लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट का आपको डिफरेंस पता चलेगा। हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आर्ग्यूमेंट्स की? ओनली इंग्लिश। वहां पर हिंदी यूज ही नहीं होती है वाइल आर्ग्यूइंग द मैटर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी जिस कोर्ट में हो वो सब चलता है। जनाब जनाब कह के आप एड्रेस कर लेते हो। कैन यू डू दैट इन हाई कोर्ट? माई लॉर्डशिप या माई लॉर्ड्स के बिना कैन यू एड्रेस द जजेस और द बेंच ओवर देयर? फाइल उठा के मारेंगे। दे विल लिटरली डिसमिस द केस। क्यों? बिकॉज दे हैव दैट ऑरा, दे हैव बिल्ट दैट रेपुटेशन ऑफ देमसेल्व्स। हर कोर्ट में हर जज की अलग तरीके से अप्रोच है और हर एक को हम उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, राइट right? किसी के हम कहते हैं दे रीड द फाइल, समटाइम्स वी से आई विश मेरा इन जज के पास आ जाए, आई वांट टू आर्ग्यू इन दैट कोर्ट वंस। मुझे उस बेंच के आगे आर्ग्यू करना है। दे आर दैट गुड। एक्सपीरियंस मिलता है। कई बार फ्री होते हैं तो कौन सी कोर्ट में जाकर बैठते हो अगर केसेस के बारे में सीखना हो, अगर फ्री हो, इफ यू आर नॉट गैलावेंटिंग अराउंड ऑफ कोर्स, इधर उधर दोस्तों के साथ, इफ यू आर नॉट रोमिंग हियर एंड देयर। अगर आपको लगता है कि सीखना है कोर्ट्स के बारे में, किसके कोर्ट में जाकर बैठते हो? बैठते ही नहीं। किसके कोर्ट में बैठते हो ज्यादा? आर्ग्यूमेंट्स आर गुड ओवर देयर जो करते हैं, जजमेंट्स, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जो ढीले ढाले से होते हैं उनकी कोर्ट में जाकर बैठ जाओगे। नहीं बैठोगे, आपको भी लगेगा इससे अच्छा दोस्तों के साथ ही घूम लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा। और जजमेंट कैसे डिलीवर होती है, सब कुछ कैसे होता है, ये मूवीज वाला कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये वो, ये जो भी मूवीज देखकर लॉ में आ जाते हैं वो बेचारे बहुत डिसअपॉइंट होते हैं बाद में। Theoretically and practically law are two different aspects. लेकिन being a judicial officer, you have the chance to make a difference in the society. तो language is going to play a major role. वैसे भी अब धीरे धीरे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि छोटे से गांव में जाकर जज बनना है तो वो आपकी चॉइस। अगर आप चाहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अच्छे जज की पोजीशन होनी चाहिए, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर गुड रैंकिंग एंड स्कोर्स, राइट? ये तो नहीं कि उठा के अगर आपको भेज दिया किसी भी छोटे से गांव में, वहां रिस्पेक्ट ज्यादा होती है उल्टा। अब चंडीगढ़ में कितने कोर्ट रूम्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? 28 to 30 courtrooms are working currently, right? So we have approximately 28 to 30 judicial officers here. हर कोई कह देते हैं मैं जज हूं, मैं जज का बेटा हूं। दैट टू वी हैव हाई कोर्ट ओवर हियर। हाई कोर्ट में कितने कोर्ट रूम्स हैं? हाई कोर्ट में तो पता होगा ना? फोर्थ फ्लोर तक बताओ, जो लास्ट में कोर्ट जाती है ऊपर, राइट मोस्ट कॉर्नर में, दैट इज द लास्ट कोर्ट रूम जहां पर बेल मैटर्स हियर होते हैं। कौन सी कोर्ट रूम होती है वो? तुम हाई कोर्ट जा रहे हो और मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे 1 साल हो गया हाई कोर्ट गए हुए अभी। Still, if you've been there, if you've even gone, if you've been there for even a day or two, कोर्ट नंबर्स तो देख ही लेते हैं हम। चंडीगढ़ में कितने सारे जजेस हो गए ना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट के। मोहाली भी आ गया यहाँ पर, तो पंचकुला भी आ गया, फिर कंज्यूमर कोर्ट भी आ गया, यहाँ पर लेबर कोर्ट भी आ गया, रेरा कोर्ट भी आ गया, सेक्रेटेरियल ऑफिस भी आ गया। कितने सारे ऑफिसर्स और जजेस हो गए। छोटे शहर में सिर्फ एक दो जजेस होते हैं मुश्किल से, वहां पर इज्जत ज्यादा मिलती है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें सिटी मिले फॉर द अमेनिटीज एंड एवरीथिंग, राइट? नाउ इट्स अप टू यू how you want yourself to be treated in this world. Next, beta, write down some rules and regulations. Write down. Number one, don't change the tenses. Number one, don't change tenses. जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो
यू शुड नॉट कीप ऑन फ्रिक्वेंटली चेंज द टेंसेस कि आप प्रेजेंट परफेक्ट से कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो गए, फिर आप पास्ट उसमें चले गए, पास्ट से सीधा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो गए। फ्रिक्वेंटली टेंसेस नहीं चेंज होते कभी भी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कल क्या किया था, फिर हाउ वाज योर डे और व्हाट आर योर गोल्स, आप बोलने लग जाओ मैम मैंने ऐसे ऐसे किया था, अब ना मैं ये करूंगी अभी, और मैंने फ्यूचर में ना ये भी किया था, आप ये बोल सकते हो फ्यूचर में ये किया था। जब आप टेंस चेंज करते हो आपको मालूम नहीं होता आपके सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या निकलता है, फ्यूचर में ये किया था और पास्ट में ये करूंगी। अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे, क्योंकि अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते हो आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ऐसे उल्टे पुल्टे मीनिंग निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिक टू वन आइडिया पर सेंटेंस। ये नहीं है कि आप बार बार आइडिया चेंज करते रहो सेंटेंस में, स्टिक टू वन आइडिया पर सेंटेंस। And don't waste your time on learning sentences. So the third rule is don't learn sentences. Don't learn sentences. Next, use proper punctuations. बेटा punctuation marks पढ़ने शुरू कर दो. Use proper punctuations. पंचुएशन मार्क्स में कुछ नहीं है, कॉमा कहाँ आना चाहिए, एंड फुल स्टॉप कहाँ आना चाहिए, सेमीकोलन कहाँ आना चाहिए, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा से पढ़ने शुरू कर दो। ये प्रैक्टिस से आएंगे, क्लास में मैं जितना मर्जी करवा दूंगी, ये बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। एक तो प्रेपोजिशन और एक पंचुएशन मार्क्स, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपको जितनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे उतनी अच्छी बात है। प्रेपोजिशन का टॉपिक अभी हमारा कम से कम 3-4 वीक्स के बाद आएगा, तो तब तक इतना टाइम वेस्ट क्यों करना हमने, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुद करना भी शुरू कर दो। लेकिन पंचुएशन मार्क्स तो आप खुद करना शुरू कर ही दो। प्रेपोजिशंस फिर भी मैं बेसिक्स करवा दूंगी, लेकिन प्रेपोजिशंस इतनी ज्यादा है ना, क्योंकि हर वर्ड को एक प्रेपोजिशन असाइंड है, हर वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन असाइंड है। कैसे करोगे, कितनी वोकैबुलरी करवा दूंगी मैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, जो रूल्स एंड prepositions के दैट आई टीच यू, लेकिन देर आर सम वर्ब्स दैट ओनली गो विद स्पेसिफिक prepositions दैट वी कैन नॉट कवर इन आवर क्लास। देयर विल बी 10,000 प्लस वर्ड्स, कैसे करेंगे हम? तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देना जब prepositions करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पंचुएशन मार्क्स स्टार्ट राइट नाउ। और आपका लास्ट रूल जो 5th रूल है, दैट इज टू मेंटेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मेंटेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेटा जैसे वर्ड हमें बता ही रहा है, सब्जेक्ट शुड बी अग्रीइंग विद द वर्ब। ये नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ और है वर्ब कुछ और है। आप बोलो आई, आई छोड़ो, चलो माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मूवी, इज इट ओके? इज द सब्जेक्ट अग्रीइंग विद द वर्ब? माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मूवी, ठीक है ये, ठीक है। Who says that it is correct? Raise your hands. One. Who says that it is incorrect? Raise your hands. न्यूट्रल नहीं रह सकते। माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू द मूवीज। फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्रेंड्स एस के साथ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। इज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो क्या प्लूरल और सिंगुलर ऐसे होना चाहिए वर्ब के साथ? क्या आना चाहिए? माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री करना चाहिए, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। वी विल बी डूइंग द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एज वेल। चलो, समझ आ गया बेटा ये चीजें क्या है, कैसे करनी है? बुक्स भी लिख ली हैं आपने, राइट? अब नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वोकैबुलरी हो गई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई, मैं आपको करवा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना करवा दूंगी? जहां भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो उनको अब से याद करना शुरू कर दो। टुडे आई यूज्ड 2 idioms in the class. Which were they? While talking to all of you. ध्यान भी नहीं दिया। पीस ऑफ केक क्या होता है? मैंने बोला था ना, इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इज नथिंग बट अ पीस ऑफ केक। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। क्या होता है पीस ऑफ केक? केक का पीस। लेकिन अगर इसको मुहावरे में, हाँ, वेरी इजी। पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग दैट कम्स इजी। मैंने लाकर आपको केक का पीस दे दिया, आप क्या कहोगे? थैंक यू मैम, बिना कुछ किए हमें केक मिल रहा है खाने को।
है। पीस ऑफ केक मीन समथिंग दैट इज इजी। तो ऐसी चीजें मुहावरे हैं बेटा, मुहावरे तो हम हिंदी पंजाबी में भी यूज करते हैं ना। स्टार्ट ट्राइंग टू यूज देम इन योर डेली लैंग्वेज एज वेल। गॉट इट। फ्रेजेस हैं टेक आउट, है ना, कॉल इनटू क्वेश्चन, ऐसे टाइप ऑफ फ्रेजेस होते हैं। जितना रीड करोगे अब से न्यूज़पेपर उतना फायदे में रहोगे। गॉट इट। एनी डाउट? चलो एक दो वर्ड्स में आपको थोड़ा सा लेट मी शो यू द मिरर कि आपको कितनी वोकैबुलरी अभी आती है और कितनी नहीं आती है ना। लेट्स सी। उस दिन वाले वर्ड्स नहीं करेंगे हम, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए। क्लिक, क्या मीनिंग होता है इसका? क्लिक। आर यू ट्रू फ्रेंड्स? आर यू थ्री फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स? कोई और फ्रेंड है आपका? नहीं, क्लोज में है। कितना बड़ा ग्रुप है आप लोगों का? तीन ही है। अच्छा लगेगा कि कोई और चौथा बंदा आके आपके ग्रुप में आके बैठने लग जाए अननेसेसरी? नहीं अच्छा लगेगा। तो क्लीक मीन्स अ ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बड़ा नहीं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु डू नॉट अलाउ अदर्स टू ज्वाइन। फ्रेंड्स का ग्रुप, छोटे से फ्रेंड्स का ग्रुप जो बाहर वालों को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करते। ये वाला वर्ड मैंने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि आपको नीड बढ़ सकती है राइटिंग में। अंडरस्टूड? साइकोफेंट हमने कर लिया आज, है ना। क्या था साइकोफेंट? SYCOPHANT, साइकोफेंट। हाँ जी। इनसिंसियर प्रेजेस बेसिकली, सिर्फ प्लीजेस नहीं, प्लीज तो आप भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा काम करोगे, मैं खुश नहीं होंगी। डेली होमवर्क करोगे, वॉन्ट आई बी प्रेज्ड, है ना, प्लीज सॉरी, है ना। लेकिन इनसिंसियर प्रेज, मैम योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल, मैम वेयर डू यू लिव, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैम नहीं नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आपके पास, ये वाली प्रेजेस होती है इनसिंसियर। मतलब दैट डोंट कम आउट ऑफ योर हार्ट। ठीक है, पर्सन हु डज दैट इज कॉल्ड साइको नहीं, आगे क्या है उसका? इज कॉल्ड, वेरी गुड, साइकोफैंट। साइकोफैंट। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में रखा करो कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीजें हेल्प करें। गॉट इट? अगर मैं आपको डेली जो ये बोल रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को करने के लिए, क्या आपके लिए इजी टास्क है इनिशियली या डिफिकल्ट है? इनिशियली इजी। बन जाते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश में इजीली आपसे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है या इजी है? बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। गोली को चबा सकते हो बुलेट को? क्यों? ली और मूवीज में तो दिखाते हैं ऐसे खा गए वो। कितना मुश्किल है गोली को चबाना। बाइट द बुलेट, हाउ डिफिकल्ट इट इज। हाँ जी, बाइट द बुलेट क्यों डिफिकल्ट है? एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? अब ये तो बोल रहे हैं हमने बाइट कर लिया बुलेट को, मीन्स टू फिनिश समथिंग डिफिकल्ट। फिनिश। हाँ, जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है डेली, लेकिन ओवरकम करोगे। सो यू कैन से आई एम बाइटिंग द बुलेट एवरी डे व्हेन मैम गिव्स मी होमवर्क टू राइट डाउन 5 सेंटेंसेस ऑन ईच वर्ड। अब देखो मैंने पूरा सेंटेंस यूज किया, मीनिंग समझ आया ना। अगर मैं बोलूं आई एम बाइटिंग द बुलेट एवरी डे व्हाइल डूइंग होमवर्क, इज इट अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? लॉजिकल मीनिंग दे रहा है?
कंप्लीट बता रहा है, क्यों कर रहे हो भाई बाइट बुलेट होमवर्क करके? हमें तो नहीं पता ना। मैंने क्या बोला? आई एम बाइटिंग द बुलेट एवरी डे व्हाइल डूइंग होमवर्क एज मैम गिव्स मी 5 to 6 sentences ईच वर्ड। ठीक है बेटा, ये चीजें होती हैं। अब मुझे बताओ, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है लैंग्वेज पढ़ते हुए? अगर पढ़िए, इफ यू एवर स्टार्टेड विद इट। यस। वो तो फिर ढूंढना पड़ेगा साथ साथ। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर मालूम है तो मालूम है, नहीं है तो नहीं है। इंग्लिश का पेपर ऐसे है कि आपका 2 घंटे में हो सकता है। क्यों? अगर ईडियम आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वोकैबुलरी आती है तो आती है। तो ये नहीं मैं कहूंगी ऐसे में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत खुला टाइम मिलेगा। या तो आता है टॉपिक या नहीं आता, बस इतना सा होता है। हाँ, लेकिन एक इंग्लिश में एक चीज का ध्यान रखना कि शुरू में जाते ही फेयर शीट पे मत लिखने लग जाना, कटिंग करके एक बुरा इंप्रेशन जाता है। लास्ट शीट ओपन करो, उसके ऊपर रफ वर्क लिखो, साइड में लाइन लगा के रफ वर्क नहीं करना, मैथमेटिक्स नहीं है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलने लग जाएंगे। लास्ट में एक शीट पर रफ वर्क लिखो। लगता है कि एक बार में सेंटेंस नहीं बनता, गलती होती है, तो पीछे हल्का हल्का बना दो, पूरा नहीं, एक छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाना शुरू कर दो, कीवर्ड्स में लिखना शुरू कर दो, इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर उन कीवर्ड्स को जितना रिक्वायर्ड है उतना आप अपने सेंटेंसेस में डालना शुरू कर दो। गॉट इट? एक बार में अगर आप सारा लिखोगे तो नुकसान किसका है? आपका। कटिंग ज्यादा होगी, ग्रामेटिकल एरर ज्यादा होने के चांसेस हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनेगा। कुछ ऊपर लिख रहे हो, किसी का सर ऊपर है, किसी का पैर नीचे है, कुछ बीच में चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको। एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा। टेक अ सेकंड बिफोर यू राइट। Okay. Now, the very important part, tomorrow we are going to start with nouns. आप तीनों का थोड़ा सा बेसिक पार्ट हो गया, लेकिन हम दोबारा करेंगे एक बारी। ठीक है, रिवाइज करके आ जाना, आपकी रिवीजन हो जाएगी क्लास में। Tomorrow we are going to start with nouns topic. कल से 2 registers, 2 pen, okay, must be there with you. छुट्टी मत मारना, इंग्लिश लैंग्वेज है, जितनी डेली लगाओगे प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का फायदा। और 200 मार्क्स है, मैंने आपको आज बताया। आपको लगता था इंग्लिश तो मैम क्या ही करेंगे करके। लॉ बेटा देखो, जिसने जुडिशरी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जो पढ़ रहा है वो पढ़ेगा। जितना लॉ आप पढ़ रहे हो, क्या पता आपसे ज्यादा वो पढ़ रहा हो, लेकिन आपको फायदा क्या होगा? लैंग्वेज से। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लोगे, सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी पंजाबी भी, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लोगे, मार्क्स किस में ज्यादा आ जाएंगे? वहां पे रैंकिंग का फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मुश्किल थोड़ी है ये, अब मैंने आपको बता दिया, ये याद नहीं रहेगा। बाइट द बुलेट नहीं रहेगा। अंडर द वेदर क्या होता है? अंडर द वेदर, बहुत इजी पूछ रही हूँ, ये तो बेसिक है। अंडर द वेदर, बीमार होना। हम कहते हैं ना मौसम की पकड़ में आ गए हैं, बीमार हो गए हैं, हवा लग गई, जुकाम हो गया, ऐसे बोलते नहीं हम। अंडर द वेदर, Stella is under the weather, so she cannot come to the office because she got wet into the rain yesterday. Under the weather, easy. समझ आ रही हैं चीजें? Got it? ये चीजों का ध्यान रखना शुरू करो, डेली रीडिंग करनी शुरू करो, अपनी खुद की वोकैबुलरी बनानी शुरू करो। ये नहीं है बेटा मैं क्लास में टीचर तो हूँ, लेकिन मैं आपको घोल के नहीं पिला सकती हूँ ना सब कुछ। आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं कह रही हूँ चाहे तुम मेरे पास 100 डाउट्स लेकर आओ, 1000 लेकर आओ, but you need to do self study in the language. I can tell you tips and tricks, I can teach you grammar, मेरी headache है, don't worry about grammar, लेकिन punctuation marks को पढ़ना शुरू करो, vocabulary, idioms and phrases इनको पढ़ना शुरू करो। as per my experience जो आते हैं from so many years, मैंने वो कंपाइल क्यों है आपके लिए नोट्स vocabulary and idioms and phrases के, लेकिन देयर आर चांसेस जो और भी आ सकते हैं इधर उधर से। आजकल जेनजी की बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप होने लगी है ना, तो क्या पता उसमें से कुछ डाल दें वो, यू डोंट नो, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम? सो दैट इज ऑल। इतनी सी थी आपकी ओरिएंटेशन क्लास।